Hello everyone, welcome to Math and Chemistry channel. My dear friends and students, हमारे इस चैनल पे अभी तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे वीडियो लेक्चर अपलोडेड थे, दैट इज मैथमेटिक्स. But from now onward, we have started a new series on solution of previous year questions of GATE and CSIR NET exam on chemistry. So the first topic that I have selected is quantum chemistry. So this is my first video lecture. I hope this video lecture will be helpful and beneficial for the aspirants who are preparing for GATE and NET exam. Okay, so student, let's start with the first question. Let's see the first question here. Yes. So the statement is given that a wave function which is further consists of two parts, one is radial and other is angular part, and the position of radial node in 2s orbital is at. So students, here the 2s wave function is given to us. Wave function is given to us, which is consists of two parts, radial, that is r, and angular, which is a function of theta and phi. Okay, so first part is the radial part. It is the radial part. And second is the angular part. Okay, this is angular part. Now question is, find the position of radial node in 2s orbital. Okay, so students, अगर आपको radial node find करना है तो आपको radial wave function चाहिए. Okay, you can ignore the angular part. There is no need of angular part. Okay, because we are calculating the radial node. तो radial node हमें radial part से ही मिलेगी. Okay, so here radial wave function is given to us and it is directly proportional to 2 minus r by a naught, e raised to power minus r by a naught. Okay, here the first thing is, what is node? So student, you know, node is the region where probability to find electron is 0. The probability of finding electron is 0. Okay, so अगर आपको रेडियल नोड फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो रेडियल वेव फंक्शन होगा उसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे. व्हाई? बिकॉज नोड इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज 0. ओके, सपोज ये वो रीजन है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा दैट विल बी 0. ओके, तो हमें भी रेडियल नोड फाइंड करना है. रेडियल नोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियल वेव फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना होगा. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, रेडियल पार्ट को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे. ओके, अब हमारे पास है टू टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दोनों का प्रोडक्ट है 0 के इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई एक टर्म 0 के इक्वल होगी, राइट. बट ये जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास 0 नहीं होगा. ओके, ये हमेशा नॉन 0 रहेगा. एंड जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा 0 हो सकता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, 2 minus r by a naught equal to 0. Why? Because exponential is non 0. ओके, तो इसकी वैल्यू हमेशा कुछ नॉन 0 आएगी. लेट्स सपोज कुछ x वैल्यू आएगी, बट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो 0 हो सकता है. तो जब हम x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया. यहाँ पे हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो r इक्वल्स टू 2a नॉट. ओके, इसको रीअरेंज करके हमने आंसर फाइंड कर लिया है r का, दैट इज 2a naught. So that means 2a naught is the position where no electron is present. Okay, so this is known as the radial node. अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी वे टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ रेडियल नोड. अगर आपको रेडियल नोड फाइंड करने के लिए बोला है तो आपका जो रेडियल पार्ट होगा उसको आपको 0 के इक्वल करना है. अगर एंगुलर नोड फाइंड करें तो एंगुलर पार्ट को आपको 0 के इक्वल पुट करना है. ओके, सो इट इज वेरी इजी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन the statement is
for the energy level 2h square over ma square, the probability of particle of mass m over length a of the 1D box is depicted by. Okay. So students, पहले हम 4 ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं एक बार. ऑप्शंस में ग्राफ गिवन है, राइट. तो अब देखो पहले ग्राफ में जो है हमारे पास सारी की सारी क्रेस्ट है, मीन्स पॉजिटिव पार्ट है, राइट, पॉजिटिव पार्ट है. बट फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव वी हैव क्रस्ट एंड ट्रफ. Similarly in third option also we have positive and negative, and in the D option we have positive. But in the question what is given? Probability. Okay, you know probability is represented by psi square. Okay, अब psi square तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट, psi square कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो हमारे पास जो B एंड C ऑप्शन है ना, ये हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट भी है और नेगेटिव पार्ट भी है. तो पॉजिटिव नेगेटिव तो psi square में पॉसिबल नहीं है. सो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. अब हम चेक करते हैं इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है. इन दोनों ऑप्शंस में नंबर ऑफ नोड्स डिफरेंट है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस है. बाउंड्री कंडीशन पे तो नोड ऑब्वियसली होगा, पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो वी कंसीडर द बाउंड्री कंडीशन एज अ नोड, जिनको हम काउंट नहीं करते. ठीक है, तो in between this region we will check the number of nodes. So here you see the probability, here it is increasing. Okay, it is becoming maximum and then it is decreasing, and here it becomes 0, here also it becomes 0, here also it becomes 0. So here number of nodes equals to, यहाँ पे nodes कितनी है 3. ओके, सिमिलरली यहाँ पे nodes कितनी है, यहाँ पे एक ही नोड है, बाउंड्री वाली nodes को हम काउंट नहीं करते. तो यहाँ पे नोड कितनी है, 1. Okay, now question is the probability of particle of mass m over length is depicted by which graph? Okay, let's start the questions. Now we are given with energy. Okay, this is the energy of the particle which is given to us, and we know the general formula for energy of particle in one dimensional box, n square h square over 8 ma square. Okay, now we want to compare these two equations. अब compare कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे 8 ma स्क्वायर है, यहाँ पे ma स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड कर दूंगी. ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 16h स्क्वायर ओवर 8 ma स्क्वायर. तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट n स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. ओके, सो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 4, मीन दिस इज द फोर्थ एनर्जी लेवल. मीन ये जो एनर्जी हमें गिवन है ना, ये फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी हमें गिवन है. ओके, सो हमें पता है कि अगर हमें एनर्जी लेवल पता है तो उसका नोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल. सो एनर्जी लेवल 4 है हमारे पास, तो नोड कितने हो जाएंगे, 3. ओके, तो आप चेक कर लो कौन से ग्राफ में 3 नोड्स है. फर्स्ट ग्राफ में 3 नोड्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is also based on energy of 1D box. So it is saying in the unit of h square over 8 ml square, the energy difference between the levels corresponding to 3 and 2 nodes, eigenfunction for particle of mass m in one dimensional box of length L is. Okay, so यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है नोड. ओके, तो हमें नोड्स गिवन है यहाँ पे 3 और नोड इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहां से अगर हमें नोड पता है ना, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, वहां से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. सो नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू 3. सो व्हाट इज द एनर्जी लेवल, इट इज 1 मोर देन नंबर ऑफ नोड. सिमिलरली हियर what is the value of n, because number of nodes are 2, so energy level will be third. Okay, it corresponds to third energy level. So suppose हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ये है एनर्जी लेवल corresponding to n equals to 3, and ये हमारे पास एनर्जी लेवल है corresponding to n equals to 4.
तो यहाँ पे एंड ऑल्सो वी नो एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी n²h²/8ml²। ओके, तो हम थर्ड लेवल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द थर्ड एनर्जी लेवल 9h²/8ml²। सिमिलरली फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट 16h²/8ml²। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई, दैट इज इक्वल टू E4 माइनस E3। ओके, सो ये जो एनर्जी आई है E4 और ये जो एनर्जी है E3, दोनों को माइनस कर देंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू 16h²/8ml² माइनस 9h²/8ml²। ओके, एंड वी विल गेट 7h²/8ml²। तो चेक कर लो कहाँ पे 7 आंसर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन रेडियल नोट। ओके, हमें 2s ऑर्बिटल के कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, तो हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट होगा। सो 2s orbital of hydrogen atom has radial node at 2a node. Okay, this is the position of radial node. So it is saying that at r equals to 2a node, radial node is present because psi 2s is proportional to। अब हमें पता है कि रेडियल नोड जहां पे भी प्रेजेंट होगा वो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जब आप r की वैल्यू 2a नोड सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो वेव फंक्शन वो 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस r की वैल्यू को हर एक ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, तो जिसमें 0 आ जाएगा आंसर, जिसमें 0 आएगा आंसर, तो दैट मीन्स दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अगर आप पहले वाली ऑप्शन में, यहाँ पे पहले वाली ऑप्शन में अगर आप वैल्यू को पुट करोगे, r वैल्यू को 2a नॉट, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2 + 2। ये तो 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2। दिस इज नॉट 0, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो हो गया वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम सिमिलरली सेकंड में भी पुट करके देखेंगे। अब सेकंड में जब आप पुट करोगे ना, तो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, तो ऐड होके 4 आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया और सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम थर्ड में वैल्यू पुट करके देखते हैं, आर की वैल्यू विच इज 2a नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फाइंड करोगे ना वैल्यू, आपके पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आर की वैल्यू को 2a नॉट पुट करते हो ना, तो आपका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, सो दैट मीन दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ नोड। सो ये हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कम्यूटेटर ऑपरेटर। ओके, तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब चारों में से हमें ये देखना है कि कौन सा ऑपरेटर कम्यूट करता है। अब कम्यूटर ऑपरेटर, व्हाट आर कम्यूटेटर ऑपरेटर्स। ओके, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सो लेट्स सपोज वी हैव 2 ऑपरेटर्स ए एंड बी। ओके, हमारे पास कोई भी 2 ऑपरेटर्स है ए एंड बी, तो operators are represented by putting cap on it. Okay, so if these operator commute if they satisfy this condition, ab minus ba, if it is equal to 0, okay, if this is equal to 0, that means the operators commute with each other, right? So we will find out that out of these 4 options, which one is a commutator operator. So let's begin with the first option. So first option में हमारे पास है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x, d/dx। ठीक है, तो हमें ये मैनुअली करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि अगर हमारे पास
if we have the operator of same kind, लाइक algebraic फंक्शन x स्क्वायर हो गया जैसे, या फिर दोनों ही डिफरेंशियल फैक्टर्स हैं, दोनों ही डिफरेंशियल है हमारे पास, ठीक है, एक इस तरह से, तो क्या होता है कि आंसर उसका हमेशा जीरो आएगा, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऐसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास दोनों के दोनों ऑपरेटर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। और डी ऑप्शन में भी हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों ऑपरेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास रह गया बी एंड सी ऑप्शन। अब हम चेक करेंगे बी और सी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले हम बी को सॉल्व कर लेते हैं, हम बी को ही सॉल्व करते हैं। सो बी है हमारे पास डी ओवर डी एक्स कोमा डी टू ओवर डी एक्स टू प्लस टू डी बाई डी एक्स। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसको हम लिखेंगे ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी क्या हो गया मेरे पास, डी बाई डी एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स टू प्लस टू डी बाई डी एक्स, ओके, माइनस, इनकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, इंटू डी बाई डी एक्स। अब हमें ये तो हमारे पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए हमें वेव फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेव फंक्शन लिखेंगे साई, हियर ऑल्सो वी विल राइट साई, हियर ऑल्सो वी विल राइट साई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स, साई को हम इनसाइड लेके जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस टू डी साई बाई डी एक्स माइनस डी टू डी एक्स टू प्लस टू डी बाई डी एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी क्यूब डी एक्स थ्री प्लस टू डी टू साई बाई डी एक्स टू माइनस ये भी हो जाएगा डी क्यूब साई बाई डी एक्स क्यूब माइनस टू डी टू साई बाई डी एक्स टू। अब चेक कर लो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होगा सेकेंड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स इफ वी आर गेटिंग जीरो आंसर, okay, it means that the operators commute with one another, okay. So students, that's all for today's lecture. I hope this lecture is helpful for all of you, those who are watching this lecture, and thank you so much. Next video हम next question discuss करेंगे, ठीक है। गेट 2006 तक हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद 7, 8 और 9 के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो।